relationship between electric field intensity E and potential difference dV, या इसी को बोलते हैं show that E is equal to minus of dV by dr. Our electric field intensity is numerically equal to potential gradient but in opposite direction. ये show करने के लिए आता है. ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? We'll use two things. We'll use definition of potential difference and definition of work done. ये दो चीज़ों का यूज़ करना है. ठीक है, आपको पता है इन दिस डायग्राम यूज अ प्लस क्यू, वी एज्यूम दैट प्लस क्यू चार्ज इज एट O. अराउंड इट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. In that electric field we choose 2 points A and B very near to each other. A, its potential let it be V, and B, its potential let it be V plus dV. And displacement between them A to B is vector dr. Initially we assume that Q1 is placed at this point A. It will experience a force in the direction of electric field, and that will be Fe vector equals to Q1 into electric field intensity. Now we shift it from A to B, and displacement is dr vector. Work done in this process WA to B is by definition of potential difference. It is charge into potential difference across those 2 points. And VAB, potential difference across these 2 points, we took it as equal to dV. So WA to B is Q1 into dV. Equation number 1 हो गया ये. Also by definition of work done, it is equal to force, the dot product of force and displacement. In this case, Fe mod dr mod cos 180 y cos 180. dr is from A to B and Fe vector is in outward direction. Angle between them is 180 degree. So there will be negative sign here. So this negative sign will appear here. Fe mod we can write it as Q1 into modulus of E. ये यहाँ से वर्क डन निकाला है और यहाँ से वर्क डन निकाला है. Certainly they must be same. So equating 1 and 2, Q1 into dV is equal to minus Q1 E mod dr mod. Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा. So E mod will be equal to minus of dV by dr. ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो करता है. द डायरेक्शन ऑफ दिस E वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ dV by dr, and that's why dV by dr is assumed as another vector quantity which we call potential gradient. ठीक है, तो dV by dr it is called potential gradient or change in potential with respect to displacement. ठीक है, its direction is exactly opposite to vector E. अब जनरली क्या होता है, आपको पोटेंशियल की वैल्यू V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड दी रहती है. जैसे V इज इक्वल टू दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर. ठीक, वेयर एक्स वाई जेड आर पॉइंट्स एट विच दिस पोटेंशियल इज गिवन एंड दोज पॉइंट्स आर सपोज 1 1 माइनस 1. सपोज क्वेश्चन पूछता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. आपको पोटेंशियल दिया है, पॉइंट दिया जिस पॉइंट पर वो पोटेंशियल दिया हुआ है और वो किसकी टर्म में है, एक्स वाई जेड के, और आपको पूछा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट दैट पॉइंट. तो आपको एक जनरलाइज फॉर्म आना चाहिए इसका. ठीक, वो फॉर्म क्या होता है जनरलाइज फॉर्म? ई वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस आई डेल वी बाई डेल एक्स माइनस जे डेल वी बाई डेल वाई माइनस के डेल वी बाई डेल जेड. ये क्या है? डेल वी बाई डेल एक्स इट मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ वी with respect to x. Whenever we say partial differential with respect to x, that means y and z will be taken as constant in that case. When we say partial differential with respect to y, in that case we will take x and z as constant. When we say with respect to z, then x and y will be constant. अब जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं आप, तो माइनस आई इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, और y और z को कैसा लेंगे? कांस्टेंट. तो इनका डिफरेंशियल दोनों का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? VAB को फर्स्ट में dV क्यों लिखे? टू माइनस dV बाई dr है, बट जनरली आपको वेक्टर r एक्स वाई जेड के टर्म में दिया रहता है. ठीक है, यानी पोटेंशियल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड दी होती है, जैसे यहाँ दी हुई है. ठीक, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये आपकी बुक से ही है. ठीक है, जो 12th क्लास में 2012 में आया था. ठीक है, इफ V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1 1 1 था, मैंने 1 1 माइनस 1 कर दिया है, बस इतना डिफरेंस है. ठीक है, बाकी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है. तो मैंने क्या बताया कि इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. जब पार्शियल डिफरेंशियल बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब y और z को कॉन्स्टेंट रहना है. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 8x. बाकी दोनों का कितना होगा?
0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। देन माइनस जे इंटू विथ रिस्पेक्ट टू y करना है तो ये पहला वाला 0 हो जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा और ये माइनस 0 तीसरा वाला भी हो जाएगा। फिर माइनस के इंटू पहला 0 दूसरा 0 और तीसरे का tan z हो जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल इट्स वैल्यू विल बी माइनस 8ix या 8x इंटू आई, 8x इंटू आई माइनस 6y इंटू जे एंड प्लस 10z इंटू के। ये वैल्यू हो गई ई वेक्टर की। अब आपको इसमें क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस x y z एज 1 1 एंड माइनस 1, तो रिप्लेस कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ ई वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस 8i माइनस 6y सॉरी जे एंड फाइनली z की जगह पर माइनस 1 रखना है तो माइनस 10 के। ये वैल्यू आ गई। इसकी मॉड वैल्यू निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ ई मिल जाएगा। मॉडुलस ऑफ ई विल बी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 10√2 आएगा वोल्ट पर मीटर। आप करके देख लें, 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर करोगे 200 आएगा, 200 का रूट 10√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, ठीक है, जो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जेई में ये वाला पार्ट आता है, ये मैंने बताया आपको। दैट्स व्हाई सिंपली वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट सर्टेन पॉइंट। ठीक, अभी मैंने सिर्फ एक्स वाई जेड अलग अलग लिए हैं। कई बार ऐसा आता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन लिखा रहता है दैट v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3yz प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ yz दोनों है, तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 3z कांस्टेंट लोगे और जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3y को कांस्टेंट लोगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। अभी आएंगे और क्वेश्चन अपने को। ये आ गया समझ में, यू ऑल गॉट इट।